آج ویو 360 میں کیا سمندری طوفانوں میں شدت کی وجہ ماحولیاتی تبدیلی ہے؟ وی او اے اردو کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ سمندری طوفان بپرجوئے کراچی اور پاکستان کے دیگر ساحلی علاقوں سے تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ طوفان کی شدت کے پیش نظر کیٹی بندر، ٹھٹھہ، سجاول اور بدین کی ساحلی پٹی سے لوگوں کا انخلاء شروع کر دیا گیا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طوفان 15 جون کو بھارت کی ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں اور پاکستانی علاقے کیٹی بندر سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے اثرات کی وجہ سے کراچی میں گرمی اور حبس کی شدت مزید بڑھ گئی ہے۔ حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں سی ویو جانے والی سڑکیں رکاوٹیں لگا کر بند کر دی گئی ہیں اور ساحل پر جانے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ گوادر کے علاقے اوماڑا میں سمندری طوفان بپرجوئے کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سمندری لہریں ساحل کے قریب سڑک تک پہنچ رہی ہیں، جبکہ کئی مقامات پر پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ ریاست کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے باعث درخت اور دیواریں گرنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پیر کو ممبئی کے ساحل پر تفریح کے لیے جانے والے 4 نوجوان تیز لہروں کی نظر ہو گئے، جن میں سے 2 کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ باقی کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کے بعد اب بپرجوئے سندھ کے ساحلی علاقوں میں مزید تباہی لے کر آئے گا۔ بحیرہ عرب میں شروع ہونے والا یہ طوفان دیکھتے ہی دیکھتے ایک خطرناک طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بپرجوئے اب تک بحیرہ عرب میں آنے والا دوسرا طاقتور ترین طوفان ہے، جس کی وجہ تیز رفتار ہوائیں ہیں۔ ماحولیاتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں اٹھنے والے طوفان کم وقت میں شدید شکل اختیار کر رہے ہیں اور ان کی شدت زیادہ مدت کے لیے برقرار رہتی ہے، جس کی وجہ ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کے مطابق بحیرہ عرب جو پہلے کبھی ٹھنڈا ہوا کرتا تھا اب گرم ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی ساری چیزوں پر بات کریں گے اور آپ کے لیے کچھ رپورٹس بھی لے کر آئیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA کے مطابق طوفان بپرجوئے کے باعث سمندر میں 30 سے 40 فٹ اونچی لہریں اٹھنے لگی ہیں۔ تاہم فی الحال طوفان کا رخ بھارتی ریاست گجرات کی طرف ہے۔ NDMA کے مطابق اگر طوفان نے اپنا راستہ بدلا تو کراچی سمیت سندھ کی پوری ساحلی پٹی متاثر ہونے کا خطرہ ہے اور ساحلی علاقوں میں 300 سے 400 ملی لیٹر تک تیز بارشوں کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں 6 گھنٹے کے سپیل میں 100 ملی لیٹر بارش متوقع ہے۔ پاکستان کے وہ کون سے ساحلی علاقے ہیں جہاں بپرجوئے سے زیادہ خطرہ ہے، یہ کب سندھ کے ساحلی علاقوں سے گزرے گا اور علاقوں کے باسیوں کے لیے اس وقت حکومتی سطح پر کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہماری رپورٹر سدرا ڈار کے پاس، جو کراچی کے ساحلی علاقے ابراہیم حیدری سے رپورٹ کر رہی ہیں۔ سدرا، کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو اس وقت بحیرہ عرب میں بننے والے بپرجوئے نامی طوفان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہائی الرٹ جاری ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت یہ کراچی کے جنوب میں تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس کے اطراف میں 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور جو لہروں کی بلندی ہے وہ تقریباً 30 فٹ بتائی جا رہی ہے اور یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ابھی جو حالیہ ایڈوائزری جاری کی ہے اس کے مطابق جو اس کا ٹریک ہے وہ نارتھ ورڈ ہے اور اس کے بعد یہ 14 جون کی صبح تک اسی طرح رہے گا اور اس کے بعد یہ ریکرو ہو کے نارتھ ایسٹ ورڈ میں تبدیل ہوتا ہوا کیٹی بندر اور انڈین گجرات سے 15 جون کی دوپہر یا شام تک گزرے گا۔ جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ پاکستان کی جو سندھ کی ساحلی پٹی ہے اس پر آنے کا زیادہ امکان ہے۔ یہ علاقے جو کیٹی بندر، بدین، سجاول، عمر کوٹ، تھر پارکر ہے، یہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے۔ 13 سے 17 جون کے درمیان یہاں پر تیز بارشیں متوقع ہیں، آندھی چلنے کا امکان ہے۔ اسی حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے اس نے یہاں کے علاقے میں جو نشیبی علاقے ہیں جیسے شاہ بندر ہے، کیٹی بندر، بدین کا 0 پوائنٹ یہاں کے دیہاتوں میں رہنے والوں کا انخلاء شروع کروا دیا ہے کیونکہ ہزاروں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، وہ علاقے خالی کروا لیے گئے ہیں۔ اگر کراچی اور حیدرآباد،
टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और सांगड़ वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर 14 से 16 जून के दरमियान तेज़ हवाएं चलेंगी, मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। PDM सिंध को ख़बरदार किया गया है कि वो अपनी तैयारियाँ पूरी रखें, क्योंकि तूफ़ान, कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा था कि जो करना है वो तूफ़ान ने करना है और उससे पहले हुकूमत ने तैयारियाँ करके देनी है। ख़ासा ख़तरनाक साइक्लोन इसे करार दिया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। हम ये देख रहे हैं कि आज समंदर में ख़ासी तुग़यानी है, हवाएं तेज़ चल रही हैं। जो माहीगीर, वैसे तो शिकार पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद जो माहीगीर करीब के समंदर में भी गए हैं वो भी अब वापस लौटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तूफ़ान की इत्तला है, लेकिन वो शिकार पर फिर भी जा रहे हैं। दफ़ा 144 नाफे से कराची के अंदर शहरियों को मना किया जा रहा है कि वो समंदर पे ना जाएं और अगर कोई जाना है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। जी, जैसे सिद्रा डार बता रही थी कि दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है, साहिली इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी बिपरजॉय तूफ़ान के पेश नज़र समंदरी शिकार पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आमतौर पर जून जुलाई में वैसे भी शिकार महदूद ही होता है, लेकिन तूफ़ान की वार्निंग के बावजूद माहीगीर शिकार कर रहे हैं। और सिद्रा डार जो कि अभी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रही थी, उन्होंने इससे पहले कुछ माहीगीरों से भी बात की कि वो इतने बिखरे हुए समंदर में शिकार का ख़तरा मोल लेकर क्यों जा रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे को पता नहीं था ये कि समंदर बंद हो रहा है। अभी हम जो है रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, बस 2 दिन के बाद आते हैं और आगे खड़े हो जाते हैं इधर समंदर। अभी तो हवा बहुत तेज़ चल गई है, इसीलिए आ गए, अभी नहीं जाएंगे। परेशानी तो बहुत है, हमारा तो गुजारे ये है, तो क्या करें, मजबूर है। बस ये सोचना हो तो समुद्र के कम हो जाए तो हम तो बचे गुजर के लिए जाते हैं। समंदर तो बहुत तेज़ था, रात को तो बहुत तेज़ था। मैं इसी वजह से तकरीबन 9 बजे इधर से छोटी क्रेक में भाग के आया। बाहर से उधर से एक जाले से मार के वो उधर से भाग के आया। अभी ये थोड़ा मछली मिली है, ये कम से कम नहीं तो 50,000 का भी नहीं होगा अंदाजे में, इतना ही है। बच्चों का तो गुजर तो करना पड़ेगा, क्या करें। मगर हमारा गुजारा ही यही है, रात दिन का गुजर सफ़र ही यही है। मछली का काम है, मछली का पकड़ना है, मछली मारना है बस। अभी जो भी नेवी वाला बता रहा है तो बहुत सारा तूफ़ान आ रहा है, जो भी गुजरात से आ रहा है, ये पाकिस्तान से टकरा जाएगा, तो इसी में तो बहुत सारा खौफ है। हम लोग दूर नहीं जाता है, अभी जो भी किनारे की तरफ है, थोड़ा सिर्फ 5-6 मील बाहर जाता है। इसमें बहुत सारा दर्द, जो भी समंदर का रुख जो भी है, तो बहुत सारा ख़तरनाक है। पानी जो भी बहुत सारा ऊपर चढ़ गया है। बस यही रब से दुआ मांग रहा हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर निकल जाएंगे। कराची की साहिली पट्टी से कोई भी किधर नहीं गया, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जो ना लोगों के पास आए, लोगों को बिल्कुल और दे, उनको बताएं कि भाई सूरत हाल ख़राब है, आप इलाका खाली कर दें। हमने तो मस्जिदों में ऐलान करा है, माइगरों को बताया भी, लेकिन माइगर वो जो नज़दीक जा रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर छोटी सी मछली मार के अपने बच्चों का जो बाकी बड़ी लांचें, बड़ी कश्तियाँ वो यहाँ पे रख ली गई है, रोक दी गई। साहिलों पर रहने वाली आबादी तो समंदरी तूफ़ानों से मुतासिर होती ही है, लेकिन समंदरों के बढ़ते हुए दर्जा हरारत से कुतबी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी भी समंदर और समंदर बुर्द होते ग्लेशियर्स के बायस हाल और मुस्तकबिल के ख़तरात से दो चार है। दुनिया की तकरीबन 28% आबादी साहिलों पर रहती है, जिसमें से तकरीबन 11% ऐसे इलाकों में रहते हैं जो सतह समंदर से नीचे हैं, जिनमें कराची भी शामिल है, जबकि दुनिया की 10% आबादी कुतबी और पहाड़ी इलाकों में रहती है। समंदर में आने वाली तब्दीली से इन इलाकों में बसने वालों के मुआश, खुराक और सकाफत को भी ख़तरा है। और अब पाकिस्तान में आने वाले इस तूफ़ान बिपरजॉय और ओवरऑल जो समंदरों में तूफ़ान आ रहे हैं, बहरा अरब में उठने वाले तूफ़ानों, उनकी शिद्दत में इजाफे और माहौलियाती तब्दीली के असरात पर मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त सरदार सरफराज हमारे साथ हैं, जो पाकिस्तान के चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार सरफराज, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कहा जा रहा है कि बहरा अरब का दर्जा हरारत बढ़ गया है और बढ़ रहा है, इस वजह से वहाँ तूफ़ान ज़्यादा शदीद होते जा रहे हैं। हमारे देखने वालों को समझाएं कि समंदरी दर्जा हरारत बढ़ता क्यों है और इससे तूफ़ान क्यों बनते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि तूफ़ान असल में बनने का बुनियादी वजह जो है ना, समंदर का दर्जा हरारत जब 26 से 28 डिग्री तक पहुंच जाता है, 50 मीटर नीचे डेप्थ तक,
تو پھر ایک طرح سے اس کو انرجی مل جاتی ہے. اس گرمی کی وجہ سے زیادہ تعداد میں بخارات اوپر اٹھ کر جاتے ہیں اور اوپر اٹھ کر ایک سرٹن لیول پر پہنچ کر وہ پھر کنڈنسیشن ہو کر بادل بنتے ہیں. پھر کنڈنسیشن پروسیس کے دوران لیٹنٹ ہیٹ ریلیز ہوتی ہے, وہ ایٹماسفیئر کو پھر گرم کرتی ہے. یوں ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کہ ورٹیکل کالم آف کلاؤڈ جو ہے نا وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے اور اس سے مسلسل اوپر جا کے ہوائیں ٹھنڈی ہو کر وہ ڈائیورج ہوتی ہیں. تو یوں نیچے سے ایک طرح سے نا مسلسل پمپنگ شروع ہو جاتی ہے گراؤنڈ کے اوپر سے, سمندر کی سطح کے اوپر سے, اور اوپر سے ہوائیں دوبارہ جو ہے نا سبسائڈ کر کے اس طرح سے پروسیس شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے جو درجہ حرارت بڑھنے کی بات ہے, ویسے تو 26 سے 28 ڈگری یہ ہے, ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے آن ایوریج جو بے آف بنگال ہے, خلیج بنگال, اس میں سال میں تقریباً 4 طوفان بنتے ہیں اور بحیرہ عرب میں سال میں ایک آدھی بنتا ہوتا ہے. یہ جو سیزن ہے پری مونسون سیزن, مئی اور جون, یہی سیزن ہوتا ہے یہاں پر طوفان بننے کا, یا پھر مونسون کے بعد پوسٹ مونسون سیزن میں اکتوبر اور نومبر میں اس ایریا میں طوفان بنتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ 2 دہائیوں 3 دہائیوں سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ اب طوفانوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا, جو IPCC کی سٹڈیز ہیں, جو انٹر پینل اینڈ گورنمنٹل چینج, ان کی جو سٹڈیز ہیں وہ یہی ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث اب جو ہے زیادہ شدت والے طوفان بننے لگے ہیں. کیونکہ اوور آل آپ دیکھیں تو پوری گلوبل ٹیمپریچر 1.1 ڈگری یعنی قبل صنعتی انقلاب سے جب اس کا موازنہ کیا جاتا ہے تو اتنا بڑھ چکا ہے. یہ تو خشکی کا, لیکن سمندری سطح پہ یہ جو ریشو ہے بڑھنے کی یہ اور زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ اوشن ہیٹ کانٹینٹ کا جو لیول ہے, WMO کی ہر سال کی جو رپورٹس آتی ہیں ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی, تو اس میں بھی اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ خشکی کے مقابلے میں سمندر کے درجہ حرارت بڑھنے کا تناسب زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اوشن ہیٹ کانٹینٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو ان دونوں فیکٹرز کی وجہ سے اب سمندری طوفانوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. جی سردار سرفراز, جیسے آپ نے بتایا کہ پچھلے جو صنعتی دور کے بعد سے خشکی کا درجہ حرارت تقریباً 1.1 ڈگری بڑھا ہے, جبکہ سمندر کا درجہ حرارت اس سے زیادہ بڑھا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سیزن ایسا ہے کہ اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ نے جو جیسے سمجھایا ہمیں کہ یہ جو ہوائیں جو چلتی ہیں نیچے سے اٹھتی ہیں اور اوپر جاتی ہیں, اور ظاہری بات ہے یہ ایک ڈائریکشن بھی لے رہا ہے سمندری طوفان, تو کیا مونسون کا جو سیزن ہے وہ بھی اس زمانے میں پاکستان اور بھارت میں آتا ہے, بلکہ بھارت کی اکثر ریاستوں میں تو وہ جون کے اوائل میں ہی شروع ہو جاتا ہے, تو کیا اس سے مونسون کے موسم پر بھی کوئی اثر پڑے گا, اور اگر پڑتا ہے تو پاکستان میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے مانسون پہ تو پاکستان میں تو مانسون اصل میں جولائی میں شروع ہوتا ہے. انڈیا کی آپ نے بات کی, وہاں پر جون میں شروع ہو جاتا ہے, یعنی فرسٹ آف آل ادھر بے آف بنگال میں جو انڈمان سی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے, اور پھر کیرالا کوسٹ میں مئی کے آخری دوسرے ہفتے میں, اور پھر انڈیا کا جو ساحلی نیچے کیرالا کوسٹ ہے وہاں جون کے بالکل شروع میں شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو پاکستان میں جولائی تک جا کے اس کی کرنٹس پہنچتی ہیں مانسون کی, پھر مانسون شروع ہوتا ہے. تو اب یہ اگر جون کے آخری دنوں میں بن رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کو مانسون, پاکستان کی حد تک بات کریں تو مانسون کی کرنٹس کو ایک طرح سے بڑھاوا دینے کا کام آ سکتا تھا, لیکن ادروائز اس کا اس سے مانسون سے کوئی اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا. لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ مانسون سے پہلے ہمارے ہاں جو پری مانسون بارشیں ہوتی ہیں, یعنی جو عربین سی والی کرنٹ اوپر جاتی ہے یا بے آف بنگال والی کرنٹ پاکستان تک پہنچتی ہے ریفلیکٹڈ یا ڈیفلیکٹڈ کرنٹ ہمالیہ سے, تو اس کے بعد جو مانسون شروع ہونے سے پہلے جو بارشیں ہوا کرتی ہیں مڈ آف جون میں, عموماً ان کو مانسون پری مانسون بارشیں کہتے ہیں. تو یہ سائیکلون کی وجہ سے وہ بارشیں ایک طرح سے نا انہینس آپ کو ملیں گی. آپ 13-14 جون کے یا 15 جون کے بعد باقاعدہ پری مانسون بارشیں پاکستان کے شمالی علاقوں میں ان کرنٹس کے اوپر جانے کی وجہ سے زیادہ شدت کی بارشیں امکان ہے کہ جون کے. سرفراز صاحب, اگر یہ بارشوں میں شدت آتی ہے تو کیا کرنا ہوگا پاکستان کو, اور وہ ادارے جو کہ ذمہ دار ہیں لوگوں کے, شہریوں کے حفاظت کے, کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں جب اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ان بارشوں میں شدت آ سکتی ہے؟ دیکھیں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ مانسون کی اس دفعہ کی فورکاسٹ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے اس طرح سے ہے کہ اس سال مانسون کی اوور آل بارشیں کم ہیں پورے 3 یا 4 مہینوں کی. جب ہم ایوریج کی بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی بارشوں کا کچھ ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں, یعنی پیسیفک اوشن کے درجہ حرارت
के साथ इसका लिंक होता है। वहाँ पर दर्जा हरारत जब कम होते हैं मामूल से, उस फिनोमेना को हम लानीना कहते हैं। पिछले 3 साल मुसलसल लानीना रहा, तो यहाँ तीनों साल मुसलसल ज़्यादा बारिशें रहीं। इस साल चूँकि पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत मामूल से बढ़ रहे हैं और अल नीनो डेवलप हो रहा है, और अल नीनो जब होता है तो पाकिस्तान में और पूरे साउथ एशिया में बशमूल इंडिया और दूसरे जो मलिका इलाके हैं उनमें मानसून की बारिशें मामूल से कम होती हैं। साइक्लोन का बनना एक बिल्कुल अलग एक तरह से, जैसे हमने जिक्र किया कि ये नॉर्मली इस सीज़न में बनते हैं, वो एक अलग क्लाइमेट है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जी अगर बारिशें इस साल भी ज़्यादा होती हैं, या जैसे पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि सैलाबी कैफियत होती है, ज़्यादा होती हैं, तो असल में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर है कि सिंध की हम मिसाल लें या बलूचिस्तान की मिसाल लें पिछले साल की, तो जितनी बारिश होती रही है वो सारी की सारी उसी ज़मीन पर एक तरह से ना डंप होती रही, ड्रेन आउट ही नहीं होता पानी, तो ड्रेनेज सिस्टम बड़ा पुअर है। और फिर ये भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब उतनी बारिश हो जाती है चंद एक दिनों में कि जितनी पूरे साल की एवरेज को बीट कर जाती है। और उसका जो नुकसान है सरफराज साहब, वो ज़राअत को बराह रास्त हो रहा है। इंसानों को तो हो ही रहा है, लेकिन ज़राअत को बराह रास्त हो रहा है, चूँकि अब बहुत कम मुद्दत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ज़राअत का दारोमदार अभी भी कुदरती बारिशों पर ही होता है। तो अगर ये पैटर्न जैसे आप कह रहे हैं अब चेंज हो रहा है, कुछ जगहों पर शदीद बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर उतनी बारिश नहीं होगी जितनी मामूल की बारिश पाकिस्तान में मानसून में होती है, तो ज़राअत को क्या नुकसान हो सकता है, कितने नुकसान का खदशा हो सकता है ज़राअत में? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पिछले साल सैलाब यानी ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ना, ये भी बुनियादी तौर पे क्लाइमेट चेंज की ही वजह से इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है कि किसी साल तो बहुत ज़्यादा बारिशें आपको देखने को मिलती हैं और किसी साल बिल्कुल खुश्क साली हो जाती है, बारिशें होती नहीं है। जैसे इस साल इम्कान यही है कि मामूल से कम बारिशें होंगी, तो हमारी जो खरीफ की फसल है जिन जिन इलाकों में प्योरली जो रेन फेड एरियाज़ हैं, जैसे शुमाली पंजाब है, पोठवार का खित्ता है, उससे ऊपर केपी के इलाके हैं, वो कश्मीर केपी और दूसरे इलाके, तो वो ज़्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर होती है वहाँ पर, यानी बारिश बर वक्त और सही बारिश हो तो ही उनकी ज़राअत आगे बढ़ती है। तो इस साल कम बारिशों की वजह से उसको मतलब दूसरी साइड से एक तरह से उसका इफ़ेक्ट होगा। पिछले साल तो सैलाब की नज़र हो गई थी फसलें, तो अब क्लाइमेट चेंज के साथ साथ एक तरह से ना क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, यानी अब फसलात का जो कैलेंडर है उसको एक नए सिरे से तरतीब देने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह की जो फ्लड रिजिलियंट क्रॉप्स हों आपके पास, कुछ ड्राउट रिजिलियंट क्रॉप्स हों, कुछ मतलब रिसर्च करके इस तरफ तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारी एग्रीकल्चर जितनी मुतासिर हो रही है पिछले 5 सालों से उसका कुछ तदारुक किया जा सके। सरफराज साहब, अगर आप बिल्कुल कम वक्त है हमारे पास, अगर आप ये बता सकें कि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए क्या किया जाना चाहिए, हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए और पाकिस्तानियों को एज ए नेशन क्या करना होगा? देखिए, क्लाइमेट की असल में कोई किसी लिमिटेड एरिया का फिनोमेना तो नहीं है, ये तो ग्लोबल फिनोमेना होता है एक तरह से, और इसकी कोई कहते हैं वेदर की और क्लाइमेट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आपको अच्छी तरह से पता है कि हर साल दुनिया भर के 192 ममालिक मिलकर बैठते हैं, COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, और उसमें यही कि जी जो ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज फ़िज़ा में हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज, मीथेन का अखराज और नाइट्रस ऑक्साइड का अखराज, ये जो जहरीली गैसेस हैं जिनकी वजह से आलमी हिद्दत बढ़ रही है, जब तक कि उनको कंट्रोल करने का कोई बहुत ही रोबस्ट तरीका या कोई नज़र अडॉप्ट नहीं किया जाता कि हम फेस करते रहिए। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे देखने वालों को बहुत अहम मालूमात दी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बहरा अरब में माजी में आने वाले एक तूफ़ान से मुतासर होने वाले एक गांव में लेकर चलते हैं जो पाकिस्तान की सूबा सिंध में है। सिंध के साहिली इलाके सजावल में कुछ ऐसे गांव हैं जहां की 100 से ज़ायद ख़वातीन मछली के शिकार से वाबस्ता हैं। इन ख़वातीन के पास कोई कश्तियाँ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये काम महारत से कर रही हैं। कई घंटे शिकार के लिए इंतज़ार करने वाली ये औरतें कब और कैसे इस पेशे से वाबस्ता हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 45 साला हाजानी मछलियों और केकड़ों के शिकार से अपना गुजर बसर करती थीं, लेकिन इन दिनों इनका वक्त झील किनारे बैठकर गांव की दीगर खवातीन को शिकार करता देखकर गुजरता है। 24 बरस कबल इनकी ज़िंदगी पुरसुकून थी, लेकिन हेपेटाइटिस में मुब्तला होने के बायस अब इनका रोज़गार मुतासिर हो चुका है।
बस मुझे मर्द हो तरह में घर में अगर मर्द हो तो वो मजदूरी करेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जिंदगी में बहुत दुख है। मेरा एक ही बेटा है जो माजूर है, मैं ही कमाने वाली हूँ और अब बीमार पड़ गई हूँ। बिनाई मुतासिर है, जिगर के आर्जे में मुब्तला हूँ, इसलिए शिकार पर नहीं जा पाई। लोगों से मांग कर अपना और माजूर बेटे का पेट भर लेती हूँ। मुझ पर जिंदगी बहुत तंग हो गई है। सफा तंग गई। ये जिला सजावल की यूनियन कौंसिल करमलिक है, जहां 100 से ज्यादा खवातीन माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता दिखाई देती हैं, जिसकी एक वजह 1999 में आने वाला वो समुद्री तूफान है जिसने साहिली पट्टी पर बसने वाले दर्जनों माहीगीरों की जान उस वक्त ली जब वो शिकार पर थे। इस हादसे के बाद बेशतर खवातीन आज अकेले अपने घर की कफालत का बोझ उठाए हुए हैं। माहौलियाती तब्दीली हो या कोई भी कुदरती आफत, इसका शिकार सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे होते हैं। मई 1999 में आने वाले समंदरी तूफान 02A ने यहाँ भी सैकड़ों घर उजाड़े। एक अंदाजे के मुताबिक इस तूफान से साहिली पट्टी पर रहने वाले 6 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। 82,000 से जायद मकान तबाह और 191 माहीगीर हलाक और लापता भी हुए। 65 साला ओडीबी इसी तूफान में लापता होने वाले एक माहीगीर की मां है जो अपने बेटे के बच्चों का सहारा है। घर अब टूटी है। तूफान इतना शदीद था कि घर टूट गया। उस वक्त बेटा शिकार पर गया हुआ था। वो तूफान में फंसने और कश्ती टूटने के सबब पानी में डूबकर मर गया। जब तूफान थमा तो मैं उसके बच्चों को लेकर महफूज जगह पहुंची। तब से अब तक मैं इन बच्चों के साथ हूँ। बचाई 2 बेटियों की मां है। इनकी शादी को 4 बरस हुए थे जब इनके शौहर इस तूफान की नजर हो गए। बचाई भी रोजाना गांव से दूर काजरीवारी कोरी झील में शिकार के लिए जाती हैं। तकलीफ बहुत है। गुजर बसर करने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन ना तो कश्ती है ना बेहतर जाल जो शिकार अच्छा मिल सके। थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उससे घर का राशन ही ला सकती हूँ। इस महंगाई की वजह से मैंने अपनी एक बेटी रिश्तेदारों को दे दी क्योंकि मैं अपने कुंबे का खर्चा नहीं उठा सकती। ठट्टा बदीन के साहिली इलाके सिर्फ तूफान ही नहीं, माहौलियाती तब्दीली का भी सामना कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सजावल की 35 लाख और केटी बंदर खारो छान या वो ठट्टा की कोई 15 लाख जमीन वो समंदर निकल चुका। लोगों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी की। 19 मई 1999 को जो तूफान आया वो उन्होंने तेल जैसा छिड़का गया, तेल का काम किया, उससे बड़ी तबाही हुई इस इलाके में। ये जाति उसका मरकज था ना। वैसे वो भारत गुजरात से होता हुआ जाति में आया 19 मई 1999 को। यहाँ के लोग जो हमारे माहीगीर हैं और या जो खेती बाड़ी करते हैं वो कोई 500 से ज्यादा लोग जो है ना फौत और गुम हो गए हैं। सुनहरी ईसा इस गांव की वो खुशकिस्मत खातून है जिनके शौहर इस तूफान में महफूज रहे, लेकिन अपने शौहर के साथ मिलकर वो भी अपने बड़े कुनबे की कफालत के लिए काम करती हैं। उनके लिए मछलियों का शिकार घर की तंगदस्ती दूर करने का वाहिद जरिया है। महंगाई जो दौर करो खराब लगो। महंगाई बहुत ज्यादा है, तभी कमाने के लिए काम कर रही हूँ। कभी हमें 10 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। कभी किस्मत से 5 किलो मछली भी मिल जाती है तो कभी 2.5 किलो। कभी कभार तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है, तो जो पैसे बचत के लिए रखे होते हैं वो ही खर्च करने पड़ जाते हैं। शदीद मसाइब के बावजूद खुराक की कमी और हेपेटाइटिस का शिकार हाजानी पुरुम्मीद है कि वो जल्द मेहनत मजदूरी करने के काबिल हो जाएंगी। अगर मैं ठीक रहती तो मजदूरी कर सकती, बच्चे को पालती, उसके लिए कुछ अच्छा करती, लेकिन अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ और फिर से शिकार पर जाऊँ ताकि मुझे किसी की मदद न लेनी पड़े और मजदूरी से पेट भरूं। शदीद गर्म और सर्द मौसम में घंटों शिकार के इंतजार में पानी में खड़ी ये औरतें अपने घरों की कफील हैं। वहीं दूसरी जानिब ये गोट अब इन बाहिम्मत औरतों के दम से जाना जाता है जिन्होंने तूफान में अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद भी अपने बच्चों और ख़ानदानों को बिखरने से बचाए रखा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, ज़िला सजावल, सिंध। 1999 के तूफ़ान ने तो बहुत तबाही मचाई। उम्मीद करते हैं कि बिपरजॉय इतनी तबाही नहीं मचाएगा और सिंध की साहिली पट्टियों पर रहने वाले इससे महफूज रहेंगे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू।
اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.